अच्छा हिंदी और इंग्लिश हिंदी हिंदी अच्छे के लिए हिंदी मालूम नहीं है, हिंदी मालूम नहीं है। हिंदी मालूम सीखना पड़ेगा। I want pray from all of you when I will speak Hindi in the seminar. This is my dream now. Yeah. So good morning. Good morning. আপনারা সবাই ভালো আছেন? খুব ভালো। आपके लिए अच्छा है? बोलिए बोलिए। आप सब अच्छे हैं? आप सब अच्छा है? अच्छा है। इंग्लिश मैं अच्छा है। मैं अच्छा है। इंशाल्लाह I will speak Hindi in future. Inshallah, it is my dream to talk Hindi. Anyway, how are you today? Excellent. So it's my privilege to introduce one of the great personality with us today. He is a great speaker, coach, trainer. Almost 35 countries he done thousands of seminars for business, personal development, and he is a author of this book, Map Your Freedom. And we are here. Long time we came from different part of the world only for 2 years, 5 years, but long time we are here. We are not free. Freedom. We are not time freedom because we are not financial freedom. So I hope all of you yesterday also program he introduced this book and all of you this investment you try to buy this book, then you get lots of things about your business, about him also. So a blind man cannot show the way to other people. He is a very successful person. He is our mentor. He is our coach, and we learn from him to become successful and get freedom like him. So he was an aeronautical engineer. Now he is a free man. Here today, tomorrow other country, Mr. Dr. Lim Soo-jin told, if you ask Mr. Ghani, when you take breakfast in Vancouver, then lunch London, huh? Then dinner Pakistan. Anywhere you go, we are going to reaction, right? So he is with us now. It's very good news for us. So please give a round of applause to Mr. Ghani. All of you switch off or silent mode your mobile. This is a very great opportunity for all of us and very important session. Customer service. We provide the service to the customer. If you service customer properly, your business will come, right? Very important topic today. Please try to utilize your maximum physically, mentally. Don't think more. Only focus here. Only 1.5 hours. So, I hope all of you enjoy, and it is a great opportunity for all of you also. I am very grateful to all of you, Mr. Benny, and we try to bring some people here who is really want to do business. So, you done 100 PV and you are here. 300 PV, because of that you are here, right? Yeah. Anybody here who didn't maintain 100 PV this month? Nobody. Nobody, right? So, big round of applause to yourself. So thank you very much, sir. All of the audience, they really want to do business and they maintain minimum 100 points above, and also 300 also there. So thank you, sir. Continue, sir. Thank you very much, Harun, for that great introduction. इनको तो उर्दू नहीं आती है और मुझे बंगाली नहीं आती है, तो लेकिन मैंने एक लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत है आप लोगों। कितने लोग बांग्लादेश के हाथ ऊपर कर? मैंने कल भी कहा था, लगता है कि मैं बांग्लादेश में खड़ा हूँ।
जो एक खूबसूरत से लफ्ज़ है जो सीखा था मैंने कि আমি আপনার সারো को ভালোবাসি। That is DXN. DXN जो है ये सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, ये एक देने वाली बात है, वैल्यू गिव, और गिविंग में मज़ा है। ये चीज़ याद रखें, आपने पैसा कमा लिया, आपने अपने लिए घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, अच्छा सूट खरीद लिया, कुछ भी किया, लेकिन जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म में हो, ऐसे पोजीशन में जब आप किसी को दे सकते हो ना, तो उस वक्त ज़्यादा मज़ा आता है। कल भी मैंने यही कहा था, जब आप देने वाले बनोगे तो उसमें जो है ना लोग आपको याद करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे। तो ये है हमारा चाह। तो मुझे बहुत खुशी है कि माशाल्लाह इतने सारे लोग जो है ना 100 भी किया। सबसे पहले जो है ना DXN में जो आप लोगों का काम है वो ये है कि अपना सेहत का ख्याल रखो। अभी एक सेशन मैंने किया, मैंने यही कह रहा था लोगों को कि आप इधर हो क्योंकि आप सेहतमंद हो। खुदा ना खास्ता कोई आदमी बीमार होगा ना तो उसकी छुट्टी हो जानी है 1-2 महीने के अंदर। तो आप जब बीमार होगे तो आपकी बीवी ना आपके माता पिता ना बच्चे आपका जो है ना दर्द और पेन ले सकती है, वो दुआ कर सकती है, सर में हाथ मार सकती है बीवी या बच्चा, लेकिन पेन आपको लेना पड़ेगा। तो एक अक्लमंदी की बात है, कॉमन सेंस, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, वो टॉप प्रायोरिटी। और देखिए मैंने माशाल्लाह बहुत मुल्कों में सफ़र किया है, सफ़र मतलब इंग्लिश का सफ़र नहीं, उर्दू का सफ़र, इथियोपिया हो या फिलिपीन हो, नेपाल, बांग्लादेश या जहाँ भी। तो सबसे जो अच्छी बात है ना, जो कामयाबी की बात है, जो सक्सेस की बात है, हर एक ने ये कहा है कि हमको प्रोडक्ट से फ़ायदा हुआ है। आप बात नहीं कर सकते हो इधर से, इधर क्या मतलब, ये क्या है, ये जो दिल है, जब तक आपका प्रोडक्ट आपके अंदर नहीं घुस सकता है और वो प्रोडक्ट आपको फायदा नहीं दिया। देखिए हम लोग सेल्स पर्सन नहीं, सेल्स पर्सन जो कहीं जाए ना तो आपके पीछे वो घूमना शुरू कर देता है कि आपको लेना है, ये करना है, वो करना है, ये आप नहीं करें। जब भी आप किसी से बात करें, आप उनको मेंबर बनाने की कोशिश ना करो, ना किसी को बेचने का कोशिश करो। तो हमारा जो मेन जो DXN का जो पैगाम है वो है लोगों का प्रॉब्लम या उनकी तकलीफ, प्रॉब्लम तो है ना लोगों का, ठीक है ना। देखिए आप लोग इतना दूर से आए हो अपने अपने मुल्कों से, ये नहीं कि आप लोगों को अपने मुल्क में पैसा नहीं मिल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पैसा मिल रहा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। आपने घर बनाना है या शादी करना है या बच्चों की तालीम देनी है, जो भी आपका जो सपना है वो सपना पूरा नहीं हो रहा। यही वजह है ना कि आप लोग वहां से इधर आए, लेकिन वो जो आए हो ना उसमें आपने बहुत कुर्बानी की। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनकी बीवी या फैमिली इधर नहीं, कितना लोग अकेला यहाँ बैचलर रह रहे, देख लो। तो आप लोग कितने लोग शादीशुदा हो, शादीशुदा लेकिन बीवी बच्चे उधर है और हाथ ऊपर। तो इसके मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर वो है, मतलब बैचलर का मतलब वो नहीं कि बाकी लोगों का शादी नहीं हुआ, इसका मतलब अकेला लड़की तलाश कर रहे हैं आप। अच्छा, तो अब आपने जो शादी किया है ना, या लोग कहते हैं शादी बनाया, बहुत सारे लोग कहते हैं, तो शादी करने के बाद अगर बीवी दूर हो, बच्चा दूर हो, तो फिर फायदा क्या है? आप कितना ही पैसा कमा लो, 1000 दिनार कमा लो, 10,000 कमा लो, खुशी कहाँ होती है पहले जब आपकी फैमिली आपके साथ, आपकी बीवी, बच्चे, बाप, माँ साथ, तो वही आपका जो है ना जन्नत है, ठीक है। तो ये आप अपने अंदर डाल दो कि सबसे पहले मैंने अपना सेहत का ख्याल रखना है, फिर अपनी फैमिली का रखना है, फिर अपने दोस्तों का रखना है, फिर अपने कम्युनिटी का रखना है, फिर अपने मुल्क का रखना है।
आप ये ना समझो कि मैं तो छोटा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए, मैंने जब पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और इंशाअल्लाह ताला मैंने डॉक्टर लीम से बात किया है, इसको मैं बांग्लादेश में भी लेके जाऊंगा, नेपाल में भी लेके जाऊंगा, इंडिया में भी स्टार्ट हो गया है। जो बच्चे हैं ना, सूरज गुरूब होने के बाद, सनसेट के बाद वो लोग अंधे हो जाते हैं। अच्छा, आई एम श्योर आप लोगों ने मुल्क में भी है ऐसे बच्चे बहुत सारे। तो 2012 में ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया ना, तो मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा और उसमें इतनी खुशी मिलेगी जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमने 20 बच्चे को जो है ना हमने लिया अपने एज अ पायलट प्रोजेक्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 4-5 मंथ, 4-5 महीने के अंदर ना उनके आंखें वापस आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ऋषि और स्पाइरुलिना, ये 2 प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट में जो है ना बहुत दम है। ऐसा नहीं प्रोडक्ट के बिजनेस के लिए जो है ना डॉक्टर लीम जो है ना ये सारा कुछ बेच रहे हैं, वो चाहता है लोगों को फायदा हो। तो मैंने आपको जो बात कही है ना, खा वो फिलीपीन हो या नेपाल हो या पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या इवन पेरू, मैक्सिको हो, हर जगह लोगों को फायदा हुआ है। तो आप लोग जो ना 100 पीवी अगर कर रहे हो ना, वो 100 पीवी का जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने अंदर लगाओ, किसी को बेचने की कोशिश नहीं करो उसको। खा वो स्पाइरुलिना हो या ऋषि हो या कॉफी हो, उसके ऊपर अगर आप 200-300 करने जाते उसके बाद बेचो। 100 जितना आप अपने अंदर लगाओगे उतने ही फिर आप यहाँ से बात करोगे, यहाँ से नहीं बात करोगे। समझ में आ गया? तो आज घंटे में हम कोशिश करेंगे, घंटा 1.5 घंटा। अगर आप लोगों को सवाल है ना तो अभी आप रोक के रखो, और आखिर में फिर मैं आप लोगों का सवाल का जवाब करूंगा। ये जो कस्टमर सर्विस है, ये किसी हॉस्पिटल ने मुझे जो है ना अप्रोच किया कि आप जो है ना हमको डॉक्टर्स को और हमारे मैनेजमेंट को कस्टमर सर्विस के बारे में बताओ। आपको पता है ये दुबई में ये जो कोर्स होता है कस्टमर सर्विस का, जिस तरह भी आप लोग हैं ना, इसका कोई आइडिया है कि कितना पैसा ये लोग लेते हैं जो लोग कस्टमर सर्विस में बात करते हैं? कोई आइडिया है? अभी मैं आने से पहले कंपनी को मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि हमने ग्रुप को ऐसे 100-200 आदमी से बात करना है, तो कितना दो? तो उन्होंने कहा कि 13,000 दिरहम। कितना हो गया? दिनार में कितना हो गया? 13। देखिए आप लोग कितने लकी हो अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग DXN के साथ कि हमारी जो ट्रेनिंग है ना फ्री करते हैं, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी बात। लेकिन एक मसला है फ्री के ट्रेनिंग, तो जब तक आदमी का पॉकेट से पैसा नहीं जाता है ना, उसको दर्द नहीं महसूस होता है, ठीक है ना? लेकिन जो मुझे आपके चेहरा जो नजर आ रहा है ना, उसमें मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों के अंदर वो तड़प है कि आप सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप कोई भी ट्रेनिंग यहाँ देने के लिए आता है ना, कोई भी आदमी, तो आप लोग के पास कागज पेंसिल होने चाहिए, कुछ लोग उनको नजर आ रहे हैं, और साथ जो है एकदम सब कुछ जो है ना 1 घंटा 1.5 घंटे के बंद कर दो, एकदम फोकस करो इस ट्रेनिंग। कोई भी आदमी इधर है वो अपना तजुर्बा लेकर आ रहा है, और मैं हमेशा कहता हूँ एक गिलास जो होता है ना, गिलास को हमेशा खाली करके इधर आओ। अगर गिलास में पानी भरा हुआ होगा तो उसके अंदर मैं पानी नहीं डाल सकता। तो आपका जो दिमाग है ना बिल्कुल ओपन रखो, खाली ना रखो, ओपन रखो, और ताकि उसके अंदर आपको जाए। तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ कि आपको सिर्फ वैल्यू बताना है कि ये कस्टमर सर्विस जो है सिर्फ DXN का बिजनेस से नहीं होता है, आपकी लाइफ में सर्विस समझते हैं ना, लफ्ज़ खिदमत कि आप अपने बीवी बच्चे के साथ भी जो है ना, ये लफ्ज़ आ गया कस्टमर, लेकिन आप सर्विस देते थे, अपना बाप माँ को भी देती हो, अपने काम में देती हो, अपने बिजनेस में देती हो। तो कस्टमर जो है ये क्या है? ये बादशाह है। कस्टमर इज अ किंग, ठीक है ना? हम बोल सकते हैं कस्टमर इज अ किंग। बोले हम, कस्टमर इज अ किंग, कस्टमर इज अ किंग।
तो किंग क्या है, जिस तरह का बादशाह है उसके पास सब कुछ है। तो ये जो है, आप अगर ये नहीं है तो ये तो आप सब कुछ जानते हैं ना, कस्टमर इज अ बॉस। आपका बॉस जो है ना, आपको नौकरी में रख भी सकता है, आपको नौकरी से छुट्टी भी रख सकता है, ठीक है ना। बादशाह के साथ तो आपका राब्ता नहीं, लेकिन बॉस के साथ तो हर रोज होता है। तो ये जो मुहावरा है, ये स्टैन वॉल्टन एक साहब ने क्या किया है कि देयर इज ओनली वन बॉस, ठीक है ना, और बॉस क्या है, वो कस्टमर है आपका। जो कंपनी का बड़ा बड़ा जो डायरेक्टर और चेयरमैन है ना, उसका भी छुट्टी करा सकता है। क्या मतलब, अगर मैं बहुत बड़ा एक फूड चेन का, मिसाल के तौर पर इधर लुलू है, लुलू है, तो लुलू सुपरमार्केट का अगर मैं ओनर, ठीक है ना, बहुत बड़ा मैंने लुलू का चेन खोला है, अगर मेरे पास कस्टमर नहीं आएगा तो मेरा तो लुलू बंद हो जाना है। समझ में आया या नहीं? तो इसलिए आपने कस्टमर का ख्याल रखना। और मैं आपको बताऊंगा ये जो कस्टमर है उनके चेहरे कैसे कैसे हैं। कस्टमर हॉस्पिटल में जो है ना, वो है मरीज लोग, मरीज जो है वो कस्टमर है। ये जो स्कूल और कॉलेज में कौन, स्टूडेंट, ये सारे कस्टमर है। जहाज में आप जाते हो, एमिरेट्स में, विमान में, नेपाल एयरलाइन में, पैसेंजर जो है वो कस्टमर है। बैंक में जो अकाउंट होल्डर है वो कस्टमर है। और मॉल में, जो मॉल आप जाते हो, सारा मॉल में जितने भी जो लोग जाते हैं खरीदने के लिए, जो बायर होते हैं वो कस्टमर है। और हमारे इंडस्ट्री में जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, कौन कस्टमर है? आपके कंज्यूमर और मेंबर आपका कस्टमर। देखो, हर एक जरूरी नहीं कि आपका मेंबर हो, लेकिन अगर आपसे वो ले रहा है सामान एज ए कंज्यूमर, वो भी आपका कस्टमर है। तो हमारे पास दोनों है, मेंबर भी आपका कस्टमर है और कंज्यूमर भी आपका कस्टमर है, ठीक है ना। तो ये तो आप जानते हैं ना, दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है, और वो क्या कहता है, हमारा डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मुझे दोबारा जिंदगी में बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो मैं वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं करूंगा, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करना है, जिसमें आप लोग। तो हर एक कस्टमर है, हर एक कस्टमर, और कस्टमर हर जगह है, हर जगह हर एक कस्टमर। अब आपने देखना है कि ये कस्टमर सर्विस क्या है। कस्टमर आप समझ गए हो? कस्टमर क्या है? हर एक कस्टमर है, मुख्तलिफ उनकी शक्ल है। कोई पैसेंजर है, कोई बैंक में अकाउंट होल्डर है, कोई स्टूडेंट है, मॉल में जाके खरीद रहा है, ठीक है ना। तो कस्टमर सर्विस जो है वो बड़ा सिंपल चीज है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। वो चीज है जो कस्टमर को हम सर्विस देते हैं। कस्टमर सर्विस, जो खिदमत कर रहे हैं कस्टमर, ठीक है ना। एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि आपने अपने कस्टमर को, मिसाल के तौर पे ये मेरी कस्टमर है, कस्टमर कैसे, कंज्यूमर। अब मेरा काम ये है, मेरा रैंक या मेरा तजुर्बा मैंने आगे नहीं रखना, मैंने ये रखना है, ये आई है मेरे पास अपना सेहत को लेकर, तो मैंने एज अ कस्टमर उसको डील करना है कि जो उनकी तकलीफ है ना, उसको तकलीफ को दूर करना, ये मेरा खिदमत है। ये आप लोग अपने दिमाग में रखें कि आप, पैसा आपको बहुत मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताऊं कि देखिए, मेरा 13 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह BXM के साथ, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, अगर आप पैसे के पीछे भागोगे ना, पैसा आपसे दूर भागेगा। ये याद रखें। अगर आप ये जो खिदमत करने लगेंगे ना, जो अभी लफ्ज इसमें आया है कस्टमर सर्विस, अगर आप सही देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। कस्टमर सर्विस आप कब देते हो? कस्टमर सर्विस जो आप खिदमत करना चाहते हो, ये नहीं कि जब वो बंदा आता है आपके पास, उसके आने से पहले
خدمت دینے سے پہلے بیفور گیونگ سروس آپ نے کچھ بتایا اس کو، پھر دوران جب وہ آیا کہ آفس میں پھر آپ نے کیا، اور تیسری جو چیز ہے جہاں پر ہم بھولتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ مار کھا رہے وہ ہے بعد میں آپ نے پروڈکٹ دے دیا، آپ نے ممبر بنا دیا، اس کے بعد فالو اپ کتنا کرنا، اس پہ جو ہے نا سارا کا سارا آپ نے دیکھیے محنت کی قبل ذرا سا، پھر دوران آپ نے اس کو بتایا کہ ایسا یہ گینوڈرما ہے، یہ اسپائرلینا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، ایسا لوگے ایسا کرو گے، یہ سارا آپ نے پورا اسٹوریاں سنا رہے ہیں اس کو حقیقت کے بارے میں۔ اب آپ نے جب اس نے لینا شروع کیا، 1 ہفتہ ہو گیا، 10 روز ہو گیا، پھر آپ نے کال کرنا ہے، چیک کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں خدمت، اور اس کا کتنا امپورٹنس ہے وہ آپ کو ابھی میں آگے بھی بتاؤں گا۔ 2 کیٹیگریز کے کسٹمرز ہیں، ایک ہے سیلر جو بیچ رہا ہے، اور ایک ہے بائر۔ بائر اس میں کسٹمر ہے، سروس کہاں پر آ رہا ہے؟ سیلر اور بائر۔ کتنے لوگوں جو دکان میں کام کرتے ہیں، سیلز پرسن، ہاتھ کھڑا کریں تو ہمارا سیلز پرسن اب کیا چیز بیچتے ہو؟ سلائی کا مشین۔ سلائی کا مشین بیچتے۔ اب میں اگر جاتا ہوں نا تو ان سے اگر مشین لینا چاہوں گا، ٹھیک ہے نا، اب وہ کس طرح سے مجھے سروس دیتے ہیں، میں ان سے خریدوں گا یا کسی اور کے پاس جاؤں گا؟ تو یہ ہے کسٹمر، اور وہ جو بیچ رہا ہے وہ سروس دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے یہ ہے جو آپ کی کمپنی کا جو اونر ہے نا، پریزیڈنٹ، چیئرمین، جنرل مینیجر، سپروائزر، جو مین اونر اور اس کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں نا، وہ لوگ کسٹمر۔ سمجھ میں آیا؟ جو اونر ہے کمپنی کا اور اس کے نیچے جو سارے کام کر رہے ہیں وہ کسٹمر۔ اب میں ایز اے اونر میں کس طرح سے آپ کا خدمت کروں، یہ میں نے جو ہے نا ویسٹ میں دیکھا ہے، امریکہ، جہاں میں رہتا ہوں کینیڈا میں، اتنا خیال رکھتے ہیں کہ جو لوگ کام کرتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں امپلائی، اور میں ہوں امپلائر، تو وہ لوگ جو ہے نا اگر ان کو اچھا تنخواہ بھی ملتا ہے نا وہ چھوڑتے نہیں، کیونکہ اتنا اچھا ان کا تعلقات ہو جاتا ہے۔ تو میں اوپر والے کو زیادہ بات کروں گی، یہ والا جو ہے نا یہ کارپوریٹ لیول میں بات ہوتی ہے اس میں۔ تو بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے کسٹمر سروس کا؟ مثال کے طور پہ میں بزنس سٹارٹ کر رہا ہوں نا، تو بزنس میں پروڈکٹ چاہیے، ہائی کوالٹی پروڈکٹ، اگر وہ نہیں ہوگا نا وہ بزنس نہیں چل سکتا۔ دیکھیں، خواہ وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہو یا باہر ایک دکان ہو، ٹھیک ہے نا، اگر اس میں پروڈکٹ ہائی کوالٹی کا ہوگا نا وہ بزنس چلے گا، مطلب 100% گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر اس کے دکان میں پروڈکٹ ہی خراب ہے تو وہ بزنس نہیں چل سکتا۔ اسی طرح نیٹ ورک مارکیٹنگ، دیکھیے آپ لوگ بہت لکی ہو کہ آپ لوگ ڈی ایکسن کے ساتھ، بہت ساری میں نے کمپنیاں دیکھی ہیں 15 سال، میرا انوالومنٹ، میں نے پڑھائی بہت کی اس نیٹ ورک مارکیٹنگ میں، اور بہت میں نے کمپنیاں دیکھی، کمپنی آتی ہے اور جاتی ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن جو آپ کے ساتھ جو کمپنی ہے جس میں آپ انوالو ہو، اس کا کوالٹی آف دا پروڈکٹ از فار ایکسلنس، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اگر یہ اندھے بچوں کو پاکستان میں ابھی تقریباً 700-800 بچوں کو آنکھیں ان کو مل گئی واپس، الحمدللہ، امیجن۔ اور انشاءاللہ ابھی جو نیکسٹ پروجیکٹ ہے ڈاکٹر لمکا کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اسپائرلینا فارم بنائیں گے، اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے نا ہم کو اب اس میں ہم باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی تو آپ کا جو کمپٹیشن ہے نا، کمپٹیشن فار ایگزامپل آپ ڈی ایکسن کے ساتھ ہو، کوئی اور بھی ہے، وہ آپ سمجھتے ہو پرائز ہے، پرائز کمپٹیشن نہیں، یہ جو ہے آپ کا نمبر آف پروڈکٹ، ٹائپ آف پروڈکٹ بھی کمپٹیشن نہیں ہے، کمپٹیشن ہے آپ کیسے ایک کسٹمر کو خدمت دے، اور یہاں پر جو ہے نا دیر از نو کمپٹیشن۔ کیا مطلب؟ آپ اگر بہت اچھا جو ہے نا، دونوں اگر 2 کمپنی ہیں، وہ آئی فون بیچتا ہے یا سیمسنگ بیچتا ہے، دونوں کے پاس موبائل فون ہے،
दो दुकान, ठीक है ना, आप एक के पास क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो एक्स्ट्रा आपको इंपॉर्टेंस दे रहा है, एक्स्ट्रा वो जो है आपको खिदमत दे रहा है, इसलिए आप जाते हो। तो यहाँ पर कंपटीशन, अगर आप लोगों ने कामयाब होना है DXL में, तो ये याद रखो कि आपका खिदमत, आपका सर्विस बहुत अच्छा होना चाहिए। ये देखें आप, 3 चेहरा कस्टमर, ये क्या चेहरा, क्या अच्छा हंस रहे, ये इसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये वाला क्या है, ये ऐसा तो ज्यादा कस्टमर नजर आ रहा है, ऐसे ही रो रहा है या खुश नहीं है। और चेहरा जो है ना हमारा आईना है, ठीक है। तो हमारा क्या, हमारा मकसद होना चाहिए, ज्यादातर ऐसा होना चाहिए लोगों का या ऐसा, पहले वाला। अब ये आपका दुकान है, जिस तरह क्या है, नो दिस इज न्यूट्रल, दिस इज आपका एक दुकान है, हाँ, और आप मेरी दुकान में आते हैं, तो आपका अभी क्या है, खुश हो या गम हो या न्यूट्रल? मेरा खुश तो अभी मैंने कुछ खिदमत किया नहीं है, मेरा दुकान में आप दाखिल हुए हो, तो आप ये हो बेसिकली न्यूट्रल हो, आपको कुछ पता ही नहीं। अब जब आओगे, मैं जिस तरह से बात करूंगा, अब उसके बाद जो है ना, आपने या ये वाला होना है या ये वो वाला होना है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर आता है न्यूट्रल दुकान के अंदर, ये याद रखो। मैं आपको अभी एक दो स्टोरी में दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। तो 7 जो है ना बेसिक बुनियादी जो है ना कस्टमर सर्विस अगर आपने अच्छा देना है, कितने लोग जो काम करते हैं ना, दफ्तर में भी काम करते हैं या दुकान में काम करते हैं, ये मैं उसूल जो आपको दे रहा हूँ ना, आज वो उसूल दे रहा हूँ जो आप अपने दफ्तर में भी बहुत कामयाब होंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ये जो उसूल है जिसने मुझे सिखाया है, ये बहुत हाई लेवल में जो है ना अमेरिका में गवर्नमेंट लेवल में बिजनेस को सिखाया। सबसे पहला उसूल मुस्कुराहट। आप लोग मुस्कुरा सकते हैं? जरा साथ वाले को जरा देख कर आप जरा मुस्कुराएं, जरा ऐसे मुस्कुराएं, जरा जो नहीं, मुझे नहीं देखे, आप साथ वाले उसको देखे, ऐसा मुस्कुरा सकते हो। ऐसा नहीं बैठो यार, ऐसा नहीं, जरा मुस्कुराओ, जरा उसको देखकर जरा मुस्कुराने की कोशिश करो। ये मुश्किल काम नहीं, इधर है देख रहे हैं। लेकिन क्या मसला है हमारे साथ, हमने मुस्कुराना भूल गए। हंसना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम मुस्कुराना भी समझते हैं कि यार क्या मैं मुस्कुराऊं। ये जो चीज है, ये हमारे इस्लाम में ये तरह का नेमत है, तो आप लोगों को दें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते, तो ये इसमें तो पैसा नहीं लगता है, पैसा लगता है फ्री का देते हैं मुस्कुराहट, तो ये आप देना शुरू करें। आपका अंदर से भी हेल्थ एंड वेलनेस अच्छा रहेगा और आप कस्टमर को भी आप करीब लेकर आओगे। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, जो महसूस करना, महसूस, गुड फीलिंग, ये क्या है? मैं आपके लिए हूं, मैं आपकी खिदमत के लिए हूं। क्या आप कहते हो? मैं आपकी सेवा के लिए हूं, ऐसा बोलते हैं ना लोग। इसमें क्या है? 5 लफ्ज है। ये क्या कह रहा? हाउ मे आई सर्व यू, मैं आपकी खिदमत कैसे कर सकता हूं? आप अंदर आए, अब ये चीज जरा आने शुरू हुआ है इधर, लेकिन ये जो चीज है ना, ये बहुत कनाडा अमेरिका में बहुत पुराना है। ये लोग मिलियंस ऑफ डॉलर पे करते हैं अच्छा कस्टमर सर्विस के लिए। कस्टमर जो अच्छा महसूस करता है ना, वो आपके पास बार बार आएगा, पैसा भी खर्च करेगा। नंबर 3 उसूल, केयर, किसी का ख्याल रखना, ठीक है ना। कस्टमर ये नहीं परवाह कि आपको कितना पता है, आप कितना अमीर आदमी हो, आप क्या हो, क्या प्रोडक्ट है। सिर्फ कस्टमर देखना चाहता है कि आप उनका ख्याल रखते हो या नहीं, क्या आप उसको इंपॉर्टेंट बनाते हो या नहीं। अगर मेरे अंदर अकड़ हो कि मैं हूं बहुत चीज, और अगला बंदा क्या समझेगा, मैं नीचे हो, तो ये तो केयर नहीं हुआ ना।
केयर में आपने उसको अच्छा महसूस कराना है। तो केयरिंग जो है, ये बड़े बड़े लोग इस पे जो है ना, ये थोड़ी सिंपल सी चीज है। और ये सारा जो मैं आपको बताऊं ना, कस्टमर सर्विस का जो बुनियादी सारे उसूल है ना, हम कहाँ सीखते हैं पता है? हम अपने घर में सीखते हैं, हमारे बाप माँ सिखाते हैं। माँ बाप जब बच्चा बड़ा होता है ना, उसे देखो बेटा ऐसा नहीं करो, ऐसा सलाम करो, अच्छे से बात करो, ऐसा जब छोटे होते उस वक्त हम सीखते। फिर हम और बड़े होते हैं तो और बड़े होते हैं, और बहुत सारी चीजें जो माहौल हमें सिखाते हैं। एवरीवन हैज टू जॉब्स। आप लोग नौकरी कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जॉब नंबर 1 क्या है? जिसके लिए आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। आप नौकरी करके आपको बुरा सीधा लगता है नौकरी से वापस आ जाइए, नहीं नौकरी नहीं करती, करती क्या नौकरी करती है? हाउस में। अच्छा, आप क्या करती हो? अच्छा, आप क्या करती हो? होटल में कुक करना। अच्छा, आप इलेक्ट्रिशियन। कौन सा कंपनी? अच्छा, इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है ना। उनको पैसा मिलता है, कोई आप लोगों को सारा एग्जाम्पल लिए, इन्होंने इलेक्ट्रिशियन का जॉब किया, ये जॉब नंबर 1 है जिसका से इनको पैसा मिलता है, पहला जॉब। दूसरा जो जॉब है ना इनका, ये इनका सारों का, वो है कस्टमर सर्विस। अगर ये इलेक्ट्रिशियन अच्छा जो सर्विस मुझे देगा तो मैं इसको दोबारा बुलाऊंगा। ये आप सारों का काम है कि आप जो भी नौकरी कर रहे हो, जहां भी सरकारी नौकरी कर रहे हो, पुलिस में कर रहे हो, शॉप में कर रहे हो, एक तो आपको नौकरी का जो आपको तनख्वाह है, दूसरा जो है ना हर एक का काम है कस्टमर सर्विस देना। तो ये है हमारा 2 जॉब। बॉटम लाइन क्या है? आप जब अच्छा कस्टमर सर्विस देते हो ना, इसको हम कहते हैं स्मार्ट बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस नहीं, इसको कहते हैं हम स्मार्ट बिजनेस। चौथा उसूल ये देख रहे हो, ये क्या है? जब हम लोग फरिश्ता हैं या इंसान है? इंसान गलती करता है, कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो अगर मिस्टेक हो जाए, कोई हर्ज ये कहना कि आई एम सॉरी, इसमें भी कोई पैसा नहीं लगता, जैसे स्माइल में नहीं लगता है, इसमें भी कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन वो जरा सा दिल गुर्दा चाहिए। अगर आपका मैं आ गया ना, आमी आमी बोलते हैं ना आप लोग, आमी, तो फिर आप सॉरी नहीं बोल सकते, ये मैं बता दूं। देखो ना, हमारा कोई भी हम्बलनेस जो है, ये अल्लाह को भी पसंद है, बंदे को भी पसंद है, और आपको भी पसंद होगा अगर आप दिल से करेंगे। तो ये जो है, अगर जब भी कोई गलती हो जाए, उनको क्या मुझसे गलती हो गई, मैं किस तरह से उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। 5 नंबर, आप सर्विस दे रहे हो, कस्टमर क्या है? किंग है, मास्टर। वो उसको तकलीफ, वो कंप्लेन करेगा, शिकायत करेगा। अब उस शिकायत को आपने उसको ठीक करना, आपने कोई गलती नहीं की।